बोली सतगुरु जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਯਮ ਨਿਜਾ ਪਰੋਵਿਤੀ ਗੰਨਾ ਲਘੂ ਚੇਤ ਸਾਮ ਉਦਾਰ ਚਰਿਤਾ ਨਾਮ ਤੂ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ। ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੀर्ण ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਸਤ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੱਕਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਪ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜਿਸ ਵੀ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ
ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੱਥ दोनों ही कुजियां के ऊपर रख दिते और साबित कर दिता कि मानस की जात सबे एक के पहचान वो, कि वो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आए ने। उन्हां लई कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई अलग नहीं है। और महापुरुष किसी खास व्यक्ति विशेष लिए नहीं, किसी खास कौम के लिए नहीं, संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हमेशा दुनिया के उपर आउंदे रहिंदे ने। वो हमेशा ही अवतार लैंदे रहिंदे ने। उन्हां दा कोई छोटा दायरा नहीं है। एक इंसान की सोच के मुताबिक उसके कुछ एक दायरा हुंदा है जिस दे विच रह के वो किसी नूं अपना मानदा है, किसी नूं पराया मानदा है, किसी नूं मित्र किसी नूं दुश्मन मानदा है। लेकिन महापुरुष उन्हां दा कोई दायरा नहीं। उन्हां दे विशाल दृष्टिकोण दे नाल सानूं पता लगदा है कि वो सब नूं ही एक समान समझदे होए सब दा ही कल्याण करदे जांदे ने। और जिस वेले असीं देखदे हां, बेशक सानू बाहरों देखण दे नाल ये ना लगे कि ऐसा कुछ है, लेकिन महापुरुषों के जीवन दे विच जो सानू नजर नहीं आउंदा वो हुंदा जरूर है। किसी ना किसी टाइम ते ऐसा मोड़ जरूर आउंदा है जिथे सानू भी पता लगता है, सानू भी एहसास हुंदा है, अनुभव हुंदा है कि महापुरुषों दे विच और साडे विच बहुत ज्यादा अंतर है। जिस तरह एक बार एक राज दे विच एक संत महात्मा जांदे ने और उस राज दा राजा संतां दा बहुत ही आदर करता है और महापुरुषों दे काफी सत्कार किया, उन्होंने अच्छा भोजन अच्छा प्रबंध किया उन्होंने रहने दे लई। मन दे विच सेवा भावना है, बहुत श्रद्धा है। और हौली हौली करदे जिस वेले महापुरुष 2-3 दिन उनके कोले रुके तो देखता है और राजा जिस वेले महात्मा नूं देखता है, महापुरुषों नूं देखता है बाहरी दृष्टिकोण दे नाल, तां मन दे विच एक दिन विचार आउंदा है कि ये तां महात्मा ने, लेकिन इन्हां विच और मेरे विच कोई फर्क तो लग ही नहीं रहा। जिस तरह मैं खांदा हां उही ये खांदे ने, मैं भी सौंदा हां ये भी सौंदे ने, फिर ये महात्मा क्यों इन्हां नूं लोग कहंदे ने जो कोई फर्क तो है ही नहीं साडे दोनों दे विच। लेकिन वो महात्मा उस राजा दे दिल दी जानदे ने। और एक दिन इसी तरह करदे करदे वो महात्मा कहंदे ने कि राजन आओ आपां कुछ थोड़ा बाहर राज दे विच घूम के आउंदे हां। रस्ते दे विच जिस वेले महात्मा भी राजपाट दीयां गल्लां करदे ने और बहुत सारे गल्लां करदे ने तां राजे दे दिमाग दे विच बार बार ओही गल आ रही है कि मेरे विच और इन्हां विच कोई फर्क तो है ही नहीं। ये भी उसी तरह ही गल्लां कर रहे ने, मैं भी उसी तरह गल्लां करदा हां, खाना पीना सोना बोलना चालना सारा कुछ तो एक बराबर है, फिर फर्क की होया? करदे करदे एक जगह दे ऊपर राजा रुक जांदा है। संत महात्मा कहंदे ने कि राजन आप रुक क्यों गए, अगे आओ। तो उस वेले और राजा कहता है कि महात्मा जी महाराज इत्थे आके मेरे राज की हद खत्म हो जाती है, इसलिए मैं इस तो अगे नहीं जा सकता। अगर मैं इस तो अगे गया तो हो सकता है पड़ोसी राजा मैनू गिरफ्तार कर लवे। तो महात्मा उस हद नू पार करते हुए दूसरे राजे की हद विच खड़े होकर कहते हैं कि राजन तेरे विच और मेरे विच यही फर्क है। तू सोचता सी कि शायद असीं दोनों एक समान हां, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिथे आके तेरा दायरा खत्म हुंदा है मेरा उत्थे कोई दायरा नहीं है। मैं हर एक जगह ते बड़े आराम दे नाल आ जा सकदा हां, क्योंकि मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई अपना नहीं, कोई बगाना नहीं, मेरे सारे ही अपने हन। इस करके साडे संत महापुरुष कहंदे ने हद चले सो मानव, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताको मता मता आगात। यह हुंदा है विशाल दृष्टिकोण दा प्रमाण। जिस वेले असीं अपने दायरे नूं छड्डदे होए थोड़ा बाहर जावांगे तां उस वेले साडे मन दे विच भी हर एक इंसान दे लई भला कल्याण दी भावना ही उठेगी, ऐसी कामना कि ईश्वर सबदा ही भला करे। लेकिन इंसान फिर भी अपनी हद विच रह के ये सारे काम करदा है। लेकिन महापुरुषों का कोई दायरा नहीं, कोई हद नहीं, वो हमेशा ही सब दे कल्याण दे लई इस सृष्टि दे अंदर आउंदे ने। लेकिन जदों जदों भी असीं अपनी दृष्टि दे नाल देख के अपनी सोच दे नाल सोचिया, क्योंकि ये परमात्मा दी लीला ही कुछ इस तरह दी है कि जिस वेले परमात्मा धरती ते आउंदा है वो अपनी लीला करदा है महापुरुषों दे रूप दे विच आके। और जदों जदों भी असीं उसकी लीला नूं देखदे हां तां असीं सोचदे हां कि शायद ये साडे वर्गा ही है, ये साडे वर्गा खांदा पींदा बोलदा इंसान है, एक आम साधारण व्यक्ति है। लेकिन कुरान दे विच इस बारे बहुत ही अच्छा लिखदे ने कि जो परमात्मा है, जो खुदा है, वो साडे वर्गा ही होएगा, साडे विचों एक होएगा, साडे वांगू बोलदा होएगा, खांदा पींदा होएगा, लेकिन वो फिर भी साडे तो जुदा होएगा, क्योंकि
ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ शिव चालीसा ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि हरि हरि एक रूप गुणशीला स्वामी करत सेवक की लीला। नाल उन्होंने ये भी दस्या कि ये केवल उसकी लीला है, और जिथे लीला शब्द प्रयोग हुंदा है उत्थे कहण दा समझाउण दा मतलब ये हुंदा है कि जो आप दे सामने हो रहा है वो केवल समझाउण दे लई है, सच्चाई नहीं है। जिस तरह फिल्म दे अंदर कोई भी अभिनेता है और जिस वे कोई भी रोल अदा करता है, सानू समझाउण दे लई कोई भी सीन प्रस्तुत करता है अपने आप नू साडे सामने तां अलग-अलग रूपां दे विच, लेकिन वास्तव दे विच उसदी वो अपनी जिंदगी नहीं है, केवल समझाउण दे लई उसनू ये सब कुछ करना पिया। इसे तरह परमात्मा है, हर एक युग दे विच हर एक समय दे विच अलग-अलग रूप लैके वो धरती ते आउंदा रहा, साडे वर्गा ही बन के अलग-अलग रूपां विच उसने अपने आप नू प्रस्तुत कीता, अनेकां ही लीलावां कीतियां जिस दे विच बहुत सारे लोकां ने उसनू समझिया भी, लेकिन बहुत सारे लोकां ने उसनू नहीं भी समझिया। इसे तरह ही एक बारी रूस के अंदर कुछ ऐसे लोग सी जिन्हां ने कुछ गलती की और उस गलती दे करके उन्हां नू उस वेले दे राजा ने देश निकाला दे दिता, और काफी समय बाद उत्थे एक नवा राजा बनिया जिसका नाम सी पीटर। और जिस वेले पीटर नू पता लगता है कि साडे राज दे विच कुछ ऐसे व्यक्ति ने जिन्हां नू कि देश निकाला दे दिता गया है, मन दे विच दया आउंदी है कि उन्हां नू किसी ना किसी तरीके द्वारा अपने राज दे विच लैके आया जावे ताकि वो भी अपने राज दे अंदर आके आराम दे नाल जीवन व्यतीत कर सकन। और उसने की कीता, अगर वो सीधा जाता है तो हो सकता है कि उन्हां नू यकीन ना आवे कि राजा साडा भला चाहुंदा है। इस दे लई उसनू एक तरीका लभ्या, उसने मजदूर दा वेश बनाया और उसे ही देश दे विच चला गया जिथे कि वो लोग काम करदे सी। काफी दिन उन्हां दे नाल काम कीता, गलबात कीती, उन्हां दे नाल बैठना खाना पीना। जिस वेले थोड़ा बहुत उन्हां दे अंदर गलबात शुरू हुई तां एक दिन बैठे बैठे वो राजा जो कि मजदूर दे रूप दे विच सी, उन्हां लोकां नू कहंदा है कि कदे आप नू अपने देश दी याद नहीं आउंदी? तां लोग कहंदे ने कि याद तां बहुत आउंदी है, लेकिन मजबूर हां कि असीं जा नहीं सकदे। और राजा कहता है कि मजबूरी ऐसी केड़ी है, अगर आप चाहो अपने देश दे विच जाना तां मैं आपनू तुहाडे देश विच पहुंचा सकदा हां। वो बहुत हैरान हुए, कहंदे ये किस तरह हो सकदा है, आप भी तां साडे वर्गे ही हो, आप दी इन्नी पहुंच किस तरह हो सकदी है? तां मजदूर कहता है कि जो राजा है ना रूस दा, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मित्र है, और अगर मैं उसनू ये गल कहांगा तो जरूर मेरी गल मन्नेगा, इसलिए अगर आप जाना चाहो तो आप मेरे नाल चलो। और उस समय भी बहुत सारे लोग सी उस राज दे, लेकिन उसके बाहरी रूप नू देख के उन्हां बहुत ही घट लोकां नू यकीन आया कि ये सच कह रहा है, और बहुत घट लोग, बहुत घट आदमी उस मजदूर दे नाल चले। और जिस वेले उस राज दी राजधानी दे विच पहुंचे, उत्थों दे लोकां ने अपने राज नू पहचानते हुए सलाम किया, और नाल जो लोग सी, मजदूर सी, उन्हां दा कुछ हौसला वधिया कि हाँ वाकई लगता है कि राजा इसनू जानता है, इसका मित्र है, क्योंकि लोग भी इसकी काफी आदर मान कर रहे ने। और जिस वेले राज दरबार दे विच पहुंचे तो जो मजदूर दे रूप विच राजा सी, उन्हां लोकां नू कहंदा है कि आप आराम करो, शाम नू राज दरबार दे विच जावांगे और फिर आपदी गलबात हो जाएगी। जिस वेले शाम हुई और सारे ही बड़ा नहा धो के खाना खा के जिस वेले राज दरबार दे विच आए तां हैरानी इस गल दी सी कि राज सिंघासन दे उपर कोई होर नहीं बल्कि ओही मजदूर बैठा होया सी। सारे बहुत हैरान ने, लेकिन वो राजा कहता है कि आप हैरान ना हो, आपनू समझाउण दे लई, आपनू दोबारा लैके आउण दे लई मैनू सारी ही लीला करनी पई। अगर मैं सीधा आपनू जाके कहंदा तां हो सकदा सी आपनू यकीन ना आउंदा, लेकिन आपनू समझाउण दे लई मैनू आप जैसा ही रूप बनाउणा पिया। और इसी तरह ही परमात्मा जिस वेले दुनिया दे अंदर हुंदा है, अगर वो सीधा आके सानू कहंदा है कि मैं परमात्मा, तां हो सकदा है कि असीं भी उन्हां लोकां दी तरह जिन्हां ने उस राजे दे उपर यकीन नहीं कीता तां सानू भी यकीन ना आवे। इस करके परमात्मा ने एक ऐसी लीला दा निर्माण किया जिस दे विच उसने अपने आप नू साडे वर्गा बनाया, सतगुर दे रूप विच उसने धरती ते अवतार लिया और साडे विच रहिंदा होया, विचरदा होया, साडे विचारां दे नाल सहमत हुंदा होया, साडे वांगू ही बोलदा चालदा होया सानू उस ईश्वर दे नाल जोड़ दिंदा है। क्योंकि जिस वेले
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਨੋ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਨੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿਆਨੋ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਨੋ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਜਾਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਾੜੀ ਆਦਮੀ ਵਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆਨੋ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਨੋ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਭੌਤਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰਾਤ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ आपने भी बहुत बार सुनिया होएगा, बहुत सारे लोगों के मुंह तो सुनने को मिलिया कि सानू ऐसे सतगुरु दी, ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है और ना ही ऐसे गुरु दे लई, ऐसे देहधारी दे लई समाज विच कोई जगह है। लेकिन साडे महापुरुष कहते ने कि अज तक ये समाज ना तो उसनू जगह दे पाया और ना ही कदे दे पाएगा। हाँ, आपनू असीं ये जरूर दस सकते हाँ कि ये समाज के अंदर आप चाहे उसनू जगह दिओ या ना दिओ, आपदे कोले उसदे रहन दे लई जगह होवे या ना होवे, लेकिन उसदे चरणां दे विच, उसदी शरण दे विच आपदे लई बहुत जगह है। कोई भी आ जाए और सबनू ही अपनी शरण दे विच लै लवेगा, क्योंकि गुरबाणी दे अंदर बहुत अच्छा गुरु साहबाना ने फरमान किया कि कोई निंदक होवे सतगुरु का, फिर गुरु शरण ओ आवे, पिछले गुनाह बख्श के सतसंगत दे नाल रलावे। क्या कैसे भी हो, चाहे जिंदगी भर आपने उसका विरोध ही क्यों नहीं किया, लेकिन एक बार अगर झुक के आप उसकी शरण विच आ गए ना, तो उसने ये नहीं पूछना कि आपने की कीता सी, आप किन्ने के पापी हो, किन्ने की आपने भक्ति की या नहीं की। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस वेले अकबर दा बेटा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे शरण दे विच आउंदा है, तो उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उसनू हस के गल दे नाल ला लिया। औरंगजेब दा बेटा जिसले गवांडी राजे तो परेशान होकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शरण विच आया, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उसनू ये नहीं कहा कि तेरा बाप मेरा विरोध करता सी, उसने बहुत अत्याचार किए। उन्होंने अपने उदारता नू दिखाते हुए, अपने सुभाव नू दिखाते हुए उसनू भी शरण दे विच लै लिया। इस करके महापुरुष हमेशा ही दया दे सागर बन के इस दुनिया दे अंदर सानू सच दा संदेश दिंदे ही रहंदे ने। लेकिन जो लोग ये कहते ने कि सानू जरूरत नहीं और ना ही ऐसे समाज, साडे समाज दे विच इन्हां दे लई कोई जगह है, तां ऐसे लोकां दे लई
गुरु साहिबान कहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा ही रहे ने, अज कोई नवे नहीं, हमेशा हर समय दे ऐसे लोगों का बोलबाला चलता ही आया है। लेकिन कदे ये नहीं होया कि महापुरुष उन्होंने गल सुन के अपना संदेश, अपना जो उन्होंने मिशन है उसनू अधूरा छड़ जान। गुरु नानक देव जी महाराज जिस वेले मुल्तान के अंदर गए और पिंड के बाहर बाहर बैठे ने, बाला मरदाना उन्होंने नाल है और पिंड के सरपंच ने गुरु नानक देव जी महाराज के लिए एक दूध का गिलास भेजा। और जिस वेले दूध का गिलास आया, गुरु नानक देव जी महाराज ने झाड़ियां दे विचों एक फुल तोड़िया और दूध के गिलास विच पा के वापिस भेज दिता। जिस वेले वापिस भेजा तो मरदाना कहता है, महाराज मैनू कुछ समझ नहीं आई, मैं सोचा सी कि शायद वो आप दे आदर भाव दे लिए दूध का गिलास भेजा और आपने उसदे विच फुल पा के वापिस भेज दिता, कुछ समझ नहीं आई। तो गुरु नानक देव जी कहते ने मरदानिया कि पिंड का जो सरपंच सी उसने दूध का गिलास भेज के ये कहा सी कि साडे पिंड विच तां पहला ही बहुत विद्वान है, साडे पिंड दे विच पहला बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग रह रहे ने, आप दे लिए कोई जगह नहीं है साडे पिंड दे विच। और मैं दूध के गिलास विच फुल पा के ये जवाब दिता है कि मैं तो जगह लैंदा ही नहीं, मैनू कोई जगह की जरूरत ही नहीं। जिस तरह दूध के गिलास के उपर दूध च फुल तैर रहा है, मैं भी इस धरती के उपर उस तरह ही रहिंदा हां। क्योंकि भाई गुरदास जी कहते हैं कि इस धरती नूं भार जरूर महसूस हुंदा है, लेकिन अकीर्तकां लोकां दा, जो लोग ऐसी शक्ति नूं मनण तो इनकार करते ने, भारे पौ अकीर्तकां मंदी हूं मंदे। धरती नूं ऐसे लोकां दा भार महसूस हुंदा है, महापुरुषां दा नहीं। इस धरती के उपर धरती का खुद पुकार करके महापुरुषों का अवतार चाहती है उस धरती के उपर होवे। इस करके गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि मैं तो जगह लैंदा ही नहीं, मैं इस तरह रहिंदा हां जिस तरह दुध विच एक फुल तैरदा है। इस करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने कि ऐसे लोगों का जो हाल है वो कितना बुरा होएगा, ये लोग शायद जानते नहीं। उन्होंने दसम ग्रंथ के अंदर लिखा, संत सेवके जो है त्यागी, दुख भूख तिनको रहे लागी, जगत बिखे किछ काम न सरही, अंत है नरक कुंड में परही। कहते जो संतां दी सेवा तो त्याग करते ने, जो संतां दी सेवा तो इनकार करते ने, जो मनते नहीं है इस गल नूं, कहते ऐसे लोग संसार दे विच रहिंदे ने। संसार विच उन्हां दे दुख भुख तृष्णावां कदे भी शांत नहीं हुंदियां और मरण तो बाद उन्हां नूं ऐसे ऐसे नरकां विच जाना पैंदा है जिन्हां बारे सुन के या सोच के इंसान दे एकदम रोंगटे खड़े हो जांदे ने। और जिस वेले उन्हां नूं सहना पएगा, उन्हां दे विच जाना पएगा, उस वेले पता नहीं की हाल होएगा। इस करके कबीर साहब कहते ने कि जाकर हर की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताकर जम डेरा किया, जीवत भये मसान। किन्ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया महापुरुषों ने, क्योंकि महापुरुषों का दिल तो नहीं चाहता, महापुरुष चाहते नहीं किसी ने इस तरह कहना। महापुरुषों ने सानू प्यार दे नाल संदेश दिता कि ऐसा तेरा जीवन है कि इस दे विच संतां दी सेवा बहुत जरूरी है। करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सोहेला। महापुरुषों ने बेनती तक की इंसान दे अगे, लेकिन जिस वेले इंसान नूं इस गल दी समझ नहीं आई तो महापुरुषों ने कठोर शब्दों का वार करके इंसान नूं समझाया कि किसी भी ढंग दे नाल इस नूं समझ आ जाए, इसके जीवन का कल्याण हो जाए। क्योंकि महापुरुषों का व्यवहारिक जीवन जिस वेले असीं देखते हाँ, उन्होंने समय समय ते बदलिया और उन्हां दे इस व्यवहारिक जीवन दे बदलन दे पीछे व्यवहारिक जो व्यवहार सी उन्हां दा बदलना ये जरूरी भी सी और एक मजबूरी भी सी। और ये जरूरी इस करके सी कि असीं महापुरुषों दे बाहरी जीवन नूं जिस वेले देखते हाँ तां भेद नूं ना समझदे होए जिस वेले अपने जीवन के अंदर उस नूं उतारना चाहते हाँ तां फिर असीं धोखा खा जाते हाँ। क्योंकि महापुरुषों का जीवन उन्होंने जीवन कोई साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने हर एक काम के पीछे कोई ना कोई भेद जरूर छुपिया हुंदा है। लेकिन जिस वेले असीं भेद नूं समझदे नहीं, भेद नूं जाने बगैर केवल देखते हाँ और देखने तो बाद उसनूं सोच के अपने जीवन के अंदर धारण करते हाँ तो उस वेले फिर गलत हो जाता है। क्योंकि एक बारी एक आदमी सानूं मिलिया और वो कहता है कि भैन जी असीं महापुरुषों के जीवन के मुताबिक अपने आप नूं चलाउणा चाहुंदे हाँ, लेकिन जिस वेले असीं महापुरुषों के जीवन नूं देखते हाँ तो उन्होंने जीवन के अंदर कुछ ऐसे कर्म ने कि जिन्हां नूं देख के आप कहते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सब पर दया करनी चाहिए है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर असीं महापुरुषों के जीवन नूं देखते हाँ तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसे कर्म किए जिन्हां के अंदर उन्होंने शिकार भी किया और असीं महापुरुषों के जीवन के मुताबिक अपने जीवन नूं चलाउंदे हाँ तो फिर असीं शिकार कर लवांगे तो कोई केड़ा फर्क पैण लग्या है।
लेकिन आपनूं पहलां भी दस्सिया सी कि जिस वेले असीं बिना भेद तो जाणे होए महापुरुषां दे जीवन दे विवहार नूं अपने जीवन दे अंदर लागू करांगे तां हमेशा धोखा ही खावांगे। असीं इह तां देख लिया कि महापुरुष शिकार करदे सी, लेकिन इह नहीं जानन दी कोशिश कीती कि महापुरुषां ने शिकार करन दे पिछे भी कल्याण दी भावना सी। जिस तरह असीं बहुत वार सुनिया होएगा इस कहानी नूं, मुल्ला खत्री गुरु नानक देव जी महाराज दा सेवक होया है और जिस वेले गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दे पिंड विच आउंदे तां मुल्ले खत्री नूं नाल लैके सत्संग प्रवचन करदे, मालक दी महिमा गाउंदे। लेकिन उन्हां दे घर दे देखदे कि बाबा जी जदों भी आउंदे ने बेटे नूं नाल लै जांदे ने, काम कार दा कोई फिकर ही नहीं है। तां एक दिन जिसले श्री गुरु नानक देव जी महाराज घर आए उन्हां दे और आके आवाज दिंदे ने, मुल्लिया चल आ आपां मालक दी महिमा दा गुणगान करिए। तां उन्हां दी माता जी उन्होंने कहा कि अज तू घरों बाहर नहीं जाना, होर बहुत काम है, ये तां वेले ने, इन्हां नूं तां करन दे परमात्मा दा गुणगान, लेकिन आपां नूं तां बहुत सारे काम ने। उन्होंने अपने बेटे नूं पकड़ के पाथियां दा जो घीरा होया करदा है उस दे विच छुपा दिता और बाहर जाके कह दिता कि बाबा जी अज बेटा घर नहीं है, इस करके वो आपदे नाल नहीं आ सकदा। और जिसले गुरु नानक देव जी महाराज ने सुनिया तां मन ही मन मुस्कुराउंदे ने और मालक दी महिमा दा गुणगान करदे होए उत्थों अगे चले जांदे ने। और उस तो बाद मुल्ले खत्री दी मां ने अपने बेटे नूं आवाज लगाई, लेकिन वो बोलिया नहीं। और जिस वेले वो नेड़े जाके देखती है तो रोंदी है, क्योंकि उससे घेरे दे विचों एक सप निकलिया जिसने कि मुल्ले खत्री नूं दस्सिया और उत्थे ही उसदी मौत हो गई। बहुत रोई, बहुत रोंदी है, पीछे जाती है गुरु नानक देव जी महाराज दे कि महाराज आप किरपा करो। तां गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने कि माता असीं तां किरपा करन ही आए सी, लेकिन आपने खुद ही उस किरपा नूं धारण ही नहीं कीता, आपने खुद ही उस चीज नूं लैना ही नहीं चाहया, हुण असीं की कर सकदे हां। और उस तो बाद ओही मुल्ला खत्री सही दी जून विच पिया और जिसदा उद्धार जिसदा कल्याण गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कीता उस सही दा शिकार करके। होर भी बहुत सारी उदाहरणां ने, जयद्रथ महाभारत के युद्ध दे विच इस गल दी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप हुणे रुको और केवल 2 इट्टां लेके आओ। जिसले 2 इट्टां लेके आंदियां उस वैद ने एक इट नूं नीचे रखिया और एक इट नाल थोड़ा उपरों चोट कीती, तरबूज फुट गया और अंदर चला गया। और उन्हां ही लोकां विच एक आदमी सी जो सब कुछ देख रहा सी। जिसले उसने देखा तां है वो सोचता है कि तो बहुत दे नुकसा है, अपनी भी वैद की चलदी है, आपां भी किते ना किते इस्तेमाल जरूर करांगे। काफी दिन बीत गए और उस पिंड का जो सरपंच सी उसके माता जी बीमार हो गए, गर्दन के उपर सोजिश हो गई और रात का समा है और असीं सारे जानते हैं कि जिस वेले लोगों ने काम करवाना हुंदा है तो सरपंच जी की खातिरदारी जरूर करनी पैंदी है। तो आदमी कहता है सरपंच जी आप चिंता ना करो, माता जी नूं सवेरे शहर ला जावांगे, हुण थोड़ा बहुत इलाज मैं कर दिंदा हां। वो कहंदे करो, कहंदे आप इस तरह करो सारे ही बाहर चले जाओ लेकिन 2 इट्टां लेके आओ। वो कहंदे इट्टां इट्टां की करनी है? कहंदे यही तां गल है, अगर वैद अपना नुस्खा ही दस दोगे तो कादी वैदगी रह जाएगी। उन्होंने 2 इट्टां लिया के दे दी, चलो ठीक है जी तू जिस तरह करदा है करो, साडी माता ठीक होनी चाहिए है। तो उस आदमी ने की कीता, उसने एक इट माता के गले के नीचे रखी और दूसरी नाल उपरों वार किया और माता जी नूं जो साह आउंदा सी वो भी बंद हो गया। और इस तरह करन दे नाल जिसले सारियां नूं पता लग्या तो सारे अंदर आउंदे ने कि माता जी नूं की हो गया, माता जी नूं की कीता है। सारे ने बहुत कुटिया उस आदमी नूं। तो बेचारा रोंदा रोंदा कहंदा है कि पता नहीं ये फार्मूला उठदा बड़ा फिट बैठा सी लेकिन कमी पता नहीं कित्थे रह गई। इस तरह साडे नाल भी जरूर होएगा, जिस वेले असीं महापुरुषां दे जीवन दे अंदरों भेद नूं ना जानदे होए उन्हां दे व्यवहार नूं अपने जीवन दे अंदर लागू करांगे। इस करके जरूरत है कि उन्हां दे जीवन दे अंदर छुपे हुए भेद नूं जाणीए और जदों असीं भेद नूं जाण के काम करांगे तां फिर सानूं इसदा कुछ लाभ भी होएगा। क्योंकि जिस तरह महाभारत दे अंदर पौंडरव दा आपने नाम सुनिया होएगा, पौंडरव ने भी बाहरी तौर ते अपने आप नूं कृष्ण दा रूप दा दे दिता, उसे ही तरह सुदर्शन चक्र चकिया, नकली दियां 2 बाहां भी लगा लियां। लेकिन होया कि जिस वेले उसका सामना कृष्ण भगवान दे नाल हुंदा है तो कृष्ण भगवान ने उसकी असली बाहां कट दित्तियां और असली बाहां कट्टण तो बाद कृष्ण भगवान ने उसनूं सुदर्शन चक्र चलाउण दे लई कहा, लेकिन उस तो कुछ भी नहीं हो सकिया। इसे करके ही गुरु महाराज जी अक्सरात एक विचार दिंदे ने कि जिस तरह एक चूहा अगर पंसारी की दुकान तो हल्दी की ढेली चुरा के लै आवे और अपने आप नूं पंसारी समझे तो उस चूहे की मूर्खता होएगी। इस करके महापुरुष कहते हैं कि असी अगर चाहते हाँ कि लोग सानू उसे दृष्टि दे नाल देखण जिस नाल असी पसंद करते हाँ, सानू लोग संतां महापुरुषां दा कोई उदाहरण साडे महापुरुषां दी उदाहरण देख के सानू उसे तरह ही समझण, तां जरूरत पएगी महापुरुषां द्वारा कईयां गल्लां नूं अपने जीवन विच उतारन दी।
ना कि जो महापुरुषां ने कीता, क्योंकि महापुरुषां दा जीवन उन्हां दा व्यवहार समय समय ते बदलदा रहा। इसे तरह ही एक बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सेवकां दे नाल जा रहे ने और उन्हां नूं समझाउण लई उन्होंने बहुत ही अच्छा ढंग अपनाया। जिस रस्ते तो जा रहे ने उस रस्ते ते बहुत सारे कीड़े मकोड़े फिर रहे सी और जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उन्हां कीड़ियां मकोड़ियां तो उपरों लंघे तो उन्हां दे सेवक भी उन्हां दे पीछे ही चले गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा कि आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिता, इन्हां कीड़ियां दी आपने जान ले ली और आपदे सिर ते बहुत बड़ा पाप चढ़ गया। उस वेले उन्हां दे सेवक कहंदे ने, महाराज आप भी तो उन्हां दे उपरों चल के आए हो और जिस तरह आप गए उसी तरह असीं आपदे पीछे आ गए। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे ने, अगर आप यही सोचते हो कि जो मैं कर रहा आप भी वही करो तो ठीक है, हुण मैं दोबारा इन्हां कीड़ियां तो लंघदा हां और आप भी दोबारा लंघना। जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां कीड़ियां तो दोबारा लंघे तो वह कीड़े जो मर चुके सी दोबारा जिंदे हो गए। लेकिन होया कि जिस वेले उन्हां दे सेवक उन्हां कीड़ियां तो लंघे तो जिन्हां दे अंदर पहला थोड़ी बहुत जान सी, सारे दे सारे ही मर गए। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थे समझाउंदे ने कि गुरु कहे सो कार कमावो, गुरु की करनी काहे को तावो, कि गुरु जो कहता है वो करो, ना कि उसने आप बाहरी जीवन ਨੂੰ देख के जिस वेले आप उसी तरह करना चाहोगे तो उसके पीछे तो कोई भेद होएगा। लेकिन आपने जिस वेले उस भेद ਨੂੰ नहीं जानिया होएगा तो आपकी छोटी सोच साडा संकीर्ण दायरा गलत ही हमेशा सोचेगा और इसका अंजाम भी सानू हमेशा गलत ही मिलेगा। जिस तरह एक बार एक घर दे विच आदमी सी और आदमी जिस वेले दफ्तर जाया करता सी उसनूं याद रखण दे लई कि शाम नूं मैं घर विच सब्जी लैके आउणी है, अपनी कमीज दे नाल गंढ बन लैंदा सी। और उसका छोटा जिहा बेटा जो उसनूं बचपन तो ही देखदा आ रहा है लेकिन कदे पुछया नहीं कि पिता जी आप ये क्यों करदे हो। बचपन तो देखण करके जिस वेले पिता घर दे विच आराम करन लगे, बेटा वड्डा होया नौकरी करन लग्या तो हुण उसने जो बचपन तो देखा सी कि शायद ये साडे घर दा साडे खानदान दा कोई रीति रिवाज है, जिस करके मेरे जो पिताजी सी अपनी कमीज दे नाल गंढ बन्नदे सी, उसने भी उसी तरह ही गंढ बन्ननी शुरू कर दी। उसके पिता दे पीछे तो कोई कारण सी कि उसनूं याद रहे कि मैं शाम नूं घर विच सब्जी लैके आउणी है, लेकिन बेटा तो कुछ ऐसा नहीं जानता, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, केवल उसने देखा और उसनूं अपने जीवन के अंदर लागू कर लिया बिना पूछे दसे समझे। और जिस वेले इस तरह किया तो उसके जीवन के अंदर उसनूं कोई इस चीज का फायदा नहीं है। महापुरुष सानू बार बार कहते हैं कि अगर आप लोग ऐसा ही करोगे तो अपने जीवन के अंदर कदे भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग यही विचार देंगे ने कि आप संता महापुरुषों की निंदा क्यों करते हो। ठीक है, जो इंसान जिस तरह करता है करी जावे, लेकिन आप निंदा क्यों करते हो। लेकिन आपको दस दईए कि निंदा शब्द जिसनूं असीं निंदा कहते हैं, सब तो पहला तो सानू ये जानना पड़ेगा कि निंदा हुंदी की है। निंदा जिस व्यक्ति दे विच जेड़ी गल है ही नहीं, असीं ओ गल अगर उसके ऊपर बना के लगाउंदे हां तां इह तां हुंदी है निंदा। लेकिन जिस व्यक्ति च जो गलती है अगर आप उसनूं वैसा ही कह दोगे तो इसनूं निंदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कबीर साहब कहते ने कि साचा शब्द कबीर का कहूं ठोक बजाए, अंधे को अंधा कहूं ये तो निंदा ना है। कहते ये तो सच्चाई है, अगर सच्चाई नूं दस दिता तो इस विच निंदा वाली केड़ी गल हो गई। हाँ, अगर साडे तो सच्चाई सुनी नहीं गई, साडे तो सहन नहीं हुई और असीं कह दिता कि आप निंदा करदे हो, लेकिन साडे महापुरुष सानू साडे धार्मिक ग्रंथां दे अंदर समझाउंदे ने ये कोई दिव्य ज्योति ही नहीं जो आपनूं नवीआं कोई कथा कहानियां सुना के अपने वल्लों ही कोई गल्लां कर रही है। साडे महापुरुषों द्वारा रचित बहुत पुराने धार्मिक ग्रंथां दे अंदर भी ये सारी गल्लां आ रही ने जिन्हां दे अंदर उन्होंने लिखिया, क्योंकि जिथे गुरु दी इन्नी महिमा गाई है, जिथे कि जाके गुरु तो बगैर कल्याण हो ही नहीं सकता। जिन्नी देर कोई इंसान गुरु की शरण में जाता नहीं उसका कल्याण असंभव है। अगर इन्नी महिमा गाउण दे बावजूद भी उन्होंने किते ना किते जाके संता महापुरुषों बारे इस तरह लिखा तो इसके पीछे कारण सी, और कारण यही सी कि जिस वे इस संसार के अंदर सच्चाई आती है तो उसके नाल झूठ का बोलबाला जरूर हो जाता है। अगर बाजार के अंदर कोई असली चीज है तो उसके नाल डुप्लीकेट जरूर आ जाती है। इसी तरह ही अगर संता महापुरुषों की निंदा की है, पहली गल तो यह कि जिथे निंदा की गल आती है उत्थे संत महापुरुष हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिथे निंदा महापुरुषों ने उन्होंने बारे लिखा तो लिखण के पीछे कारण यही सी कि उन्होंने अपने आप को बाहरी तौर पर संत महापुरुष अखवाया तो जरूर, लेकिन उन्होंने अंदर कोई ऐसा गुण नहीं सी, कोई ऐसा कारण नहीं सी जिन्होंने कि संत महापुरुष किया जा सके। क्योंकि कहण तो
कुछ नहीं होया करदा जिन्नी देर असीं उस नूं अपने जीवन के अंदर लागू नहीं करते, उस नूं अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल नहीं करते। और यही कारण है कि अज साडी कहने के अंदर और साडी करनी के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। असीं किसी नूं जुबान तो भैन कह दिंदे हां या किसी नूं भरा कह दिंदे हां, लेकिन गल तां है कि इस शब्दां दे नाल कि असीं अपने आप नूं वाकई अंदर तक किस तरह दा बना लिया है कि जो असीं अपनी जुबान तो कह रहे हां कि साडा मन भी इस चीज नूं स्वीकार करदा है या नहीं। और जेकर नहीं करदा तां फिर साडी हालत इस तरह दी है कि जिस बारे साडे महापुरुष कहंदे ने कि कहण दे नाल कदे रोटी रोटी कहण दे नाल अगर भुख मिट सकदी है तां फिर इन्हां शब्दां नूं कहण ते महापुरुषां दे द्वारा दिते गए संदेश नूं बाहरों अपनी जुबान दे नाल कह देण दे नाल तां कोई भी महान बन सकदा है। इस करके गुरबाणी दे अंदर गुरु नानक देव जी मारे कहंदे ने कि भुखियां भुख ना उतरे, गल्ली भुख ना जाए, नानक भुखा तां रजे जे गुण के गुणी समाए। कहंदे जे रोटी दीयां गल्लां बातां करन दे नाल भुख मिट जांदी तां अज इस संसार दे अंदर किन्ने ही ऐसे इलाके ने जिथे बहुत ज्यादा भुख मरी है, लोग दाने दाने दे लई तरस रहे ने। और अगर किते इस तरह दा हो जांदा कि रोटी दीयां गल्लां करन दे नाल सानू इस चीज दा एहसास हुंदा कि साडा पेट भर गया तां उस वेले फिर संसार दे अंदर ऐसे हालात पैदा ही ना हुंदे। इस करके गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिस गल नूं आप कर रहे हो, जिन्हां शब्दां नूं आप बोल रहे हो, जरूरत है उन्हां शब्दां दे द्वारा उन्हां गुणां नूं अपने अंदर धारण करन दी। इसे करके होर भी साडे गुरु साहबान साडे भगत बहुत अच्छा लिखते ने कि अगर आप बाहरी जीवन नूं बहुत पवित्र ते बहुत साफ सुथरा कर सकते हो, लोकां दी नज़रां दे अंदर आप बहुत ही पवित्र नजर आ रहे हो, अच्छे कपड़े पाए ने, लेकिन ऐसा करन दे नाल आप ईश्वर की दृष्टि तो नहीं बच सकते। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा किया कि इंसान से छुपा ले, हे इंसान तो उससे छुपा ना पाएगा, वो कण कण में है देख रहा, तेरा दोष प्रकट हो जाएगा। कहते कण कण के अंदर देख रहा है, अनेक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रकट होए संसार। कहते जेकर तू पर्दे के अंदर रह के कोई भी कर्म करता है, लोगों के सामने आके अपने आप को साफ सुथरा प्रस्तुत करता है, तां ओ परमात्मा जिस दे सामने एक मिनट के अंदर पूरा संसार आ जाता है, उसनूं पता है कि संसार के अंदर की हो रहा है, तो उस परमात्मा तो कदे कुछ नहीं छिपा सकता। कितने ही पर्दों में पाप कमाए तूने, कितने ही कर्मों में भेद छुपाए तूने, भरे बुले की कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। जानते हाँ अपने अंतर आत्मा भी इस गल नूं कहती है कि तू गलत है, लेकिन मन के वश दे विच आके असीं अपने आप को फिर भी सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी गल्लां नूं देखते हुए गुरु साहबानां नूं इन्हां बारे लिखना पिया, जिन्हां गल्लां नूं सुनते हुए देखते हुए असीं कह दिता कि शायद ये निंदा कर रहे ने, लेकिन निंदा नहीं। साडे इतिहास के अंदर बहुत सारी उदाहरणां ने ऐसियां कि जिन्हां दे विच गुरु शब्द की बदनामी भी असीं जिसले देखदे कि गुरु शब्द नूं किन्ना बदनाम किया गया। जिस तरह द्रोणाचार्य जिस वेले कौरवां ते पांडवां नूं युद्ध की शिक्षा दे रहे ने, शस्त्र विद्या सिखा रहे ने, तो उन्हां दे कोले एक एकलव्य नाम का लड़का आउंदा है और कहता है महाराज मैं भी शस्त्र विद्या सीखनी चाहता हाँ, लेकिन उस वेले द्रोणाचार्य ने यह कहा सी कि मैं अर्जुन नूं सब तो श्रेष्ठ धनुषधारी बनावांगा। और जिस वेले उन्होंने देखा कि ये जो लड़का है इसके अंदर बहुत अच्छी खूबियां है, ये बहुत अच्छा सीख सकता है, और उन्होंने उसने सब कुछ देखते हुए मना कर दिया कि नहीं मैं किसी छोटी जाति वाले नूं कदे शस्त्र विद्या नहीं सिखानी। तो वापिस वो लड़का वापिस चला गया। और काफी समय बाद जिस वेले द्रोणाचार्य कौरवां ते पांडवां नूं लेके शस्त्र विद्या दा अभ्यास कर रहे हैं जंगल दे विच, तो द्रोणाचार्य की दृष्टि एकदम पैंदी है कि एक लड़का जिसने कि एक कुत्ते की भौंकदी दी आवाज सुनन दे नाल ही उस दिशा दे विच तीर मारिया और वो तीर कुत्ते दे मुंह दे आर पार हो गया। तो बहुत हैरान होए कि ये कौन है जो कि एक आवाज दे नाल ही इतना इच्छा निशाना लगा दिता, बिल्कुल सही निशाना लगा दिता। ऐसा धनुर्धारी कौन हो सकता है? तो उस वेले द्रोणाचार्य उसके कोले जाते ने, और जिस वेले द्रोणाचार्य उस लड़के दे कोले गए तो वो एकलव्य ही सी, उसने झुक के द्रोणाचार्य नूं प्रणाम किया। और द्रोणाचार्य पूछते ने कि बेटा तुहाडा गुरु कौन है जिसने तेनू इन्नी अच्छी शस्त्र विद्या सिखाई है? तो कहते ने महाराज मेरा गुरु कोई होर नहीं आप ही हो। तो द्रोणाचार्य बहुत हैरान होंदे ने, कहते अगर मैं तेरा गुरु हाँ तो मैनू तो पता नहीं कि मैं तेरा गुरु हाँ, क्योंकि मैं तो तेनू आज तक देखा नहीं, तेनू सिखाया ही नहीं।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਲਵਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾर्य जी ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। और मैं आपदी एक मूर्ति बनाई और उसनूं मुख रखते हुए उसके हुक्म के नाल नाल अपनी शस्त्र विद्या का अभ्यास शुरू किया और आपदी कृपा दे नाल मैं अज इत्थे तक पहुंच पाया हाँ। और द्रोणाचार्य मन दे विच सोचदे ने कि मैं तां संकल्प कीता सी कि मैं सब तो श्रेष्ठ धनुषधारी अर्जुन नूं बनाउणा है, लेकिन ये तां अर्जुन तो भी वध के है। तां मन दे विच उसदे प्रति थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुंदी है। और फिर द्रोणाचार्य कहते हैं एकलव्य कि अगर तू मैनूं गुरु मनदा है तो की फिर मैनूं गुरु दक्षिणा नहीं देगा? तो उस वेले एकलव्य कहता है कि महाराज आप जो भी मंगो मैं आपनूं ओही देण लई तैयार हां। तो उस वेले द्रोणाचार्य जी एकलव्य नूं कहंदे ने कि अगर तू मैनूं देना ही चाहुंदा है तो फिर अपने सज्जे हाथ दा अंगूठा दे दे। और एकलव्य ने बिना सोचे समझे अपने गुरु नूं गुरु दक्षिणा दे विच अपने सज्जे हाथ दा अंगूठा दे दिता। तो सोचने वाली गल है कि गुरु दा काम यह है जो द्रोणाचार्य ने एकलव्य दे नाल कीता? बिल्कुल नहीं। गुरु का काम है कि अपने सेवक नूं सही रस्ते ते पाउणा और बिना भेदभाव कीते हुए हर एक नूं अपनी शरण विच लैके उसनूं ओह चीज देनी जिसकी वो मंग कर रहा है। इस करके गुरु साहिबानां नूं साडे महापुरुषां नूं ऐसी परिस्थितियां नूं देखते हुए ऐसे माहौल नूं देखते हुए कहना पिया कि खाली गल्लां करन दे नाल ही कोई महान नहीं बन जांदा, क्योंकि करनी बिन कथनी इव जो शशि बिन रजनी बांझ झुलावे पालना बालक जिमी नाही वस्त वही नहीं जानी जहां करनी नाही। कहंदे उन्हां लोकां दी हालत इस तरह दी है जेड़े लोग गल्लां तां बहुत वड्डियां वड्डियां कर लैंदे ने कि गल्लां वाले हैन कनेरे कर ना सके कोई। अगर आप उन्हां लोकां दी गल्लां सुनोगे तां आपनूं यकीन नहीं होएगा वाकई उन्हां दी गल्लां तो लगदा है कि बहुत पहुंचे हुए ने, लेकिन उन्हां लोकां दी हालत इस तरह दी है क्योंकि उन्होंने जीवन के अंदर उन्हां शब्दां विच करनी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर उन्हां गल्लां नूं उन्हां बातां नूं उन्हां विचारां नूं धारण नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया। कि जिस तरह एक बांझ औरत है जिसका कोई बच्चा नहीं है लेकिन वो पालने नूं झूले नूं झुला रही कि मैं अपने बच्चे नूं सुला रही हां, ते किड्डी वड्डी मूर्खता होएगी। इसे करके कहंदे बस वही नहीं जानी जहां करनी नहीं। कहंदे जिथे फिर करनी नहीं है फिर वो चीज नहीं मिलेगी जिस चीज नूं प्राप्त करने लई असीं ये सारा ढोंग ये सब कुछ कर रहे हां। इसलिए जरूरत है कि जो कह दिता उसनूं करके दिखाउण दी हिम्मत होनी चाहिए है। जिस तरह साडे गुरु साहिबानां ने साडे भगतां ने अपने जीवन के अंदर सब कुछ करके दिखाया और अज ऐसी ही करनी जो अज तक असीं धार्मिक ग्रंथां दे विच सुणदे आ रहे सी, पढ़दे आ रहे सी, सर्व श्री आशुतोष महाराज दी कृपा दे नाल अज असीं उਸੇ ही चीज नूं जाणिया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमेशा की तरह जिस तरह आप कहते हो अपने गुरु नूं महान सारे ही कहते हैं, क्योंकि कहावत होती है कि घुमियारी अपने भांडे नूं आप सलाउंदी ही हुंदी है, लेकिन गल अपने बर्तन नूं आप सलाउंदी नहीं। गल तां इह है कि जो उस बर्तन नूं खरीदण दे लई आया है, परखण वाला खरीदण वाला कैसा इंसान है, उसने उसकी परख किस ढंग दे नाल कीती। असीं भी अपने घरां दे विच रहिंदे हां, बाजार के अंदर मार्केट के अंदर असीं कुछ भी खरीदते हां तो उसदे विच असीं बहुत ज्यादा परख करके खरीदते हां, अपने आप नूं संतुष्ट करके कि मैं जो लैके आ रहा हां, जो खरीद रहा हां, वो बिल्कुल सही है। इसे तरह ही अज असीं धार्मिक ग्रंथां दे मुताबिक इस गल नूं खोजिया पूरी तह तक जाके कि गुरबाणी गीता रामायण बाइबल जिस गुरु की गल करती है, क्योंकि गुरु शब्द खाली नाम दे नाल लगा लैण दे नाल ही कोई गुरु नहीं हो जाता। जिस तरह संसार विच देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है और उस गरीब का नाम आप कुछ भी रख दो, करोड़ी मल रख दो या होर बहुत बड़ा नाम रख दो तो उसनूं नाम दे नाल कोई फर्क नहीं पएगा। और अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा पैसा है और उसका नाम गरीबदास रख दिए तो उसनूं कोई फर्क नहीं पैण लग्या। नाम तो कोई फर्क नहीं है, नाम तो एक खाली पहचान है बाहरी तौर पे। और इसी तरह ही गुरु शब्द लगा लैण दे नाल या वड्डे वड्डे नाम दे अपने आप नूं लगा लैण दे नाल कोई वड्डा नहीं हो जाता। जरूरत है कि जो गुरु शब्द है उसका जो मतलब है, क्योंकि गुरु शब्द एक अवस्था है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर है, हुण प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उन्हां दे विच और साडे विच शरीरिक पक्षों कोई भी फर्क नहीं है, सारे इंसान एक जैसे ने, लेकिन फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री एक पदवी का एक पोस्ट का नाम है, जिथे जाके जिस कुर्सी ते जिस पदवी ते बैठ के उन्होंने प्रधानमंत्री कहा जाता है। इसी तरह गुरु कोई बारी विखावे का नाम नहीं, गुरु कोई बारी लिबास का नाम नहीं,
गुरु एक अवस्था है, एक पोस्ट है, एक पदवी है जिसको गुरबाणी के अंदर लिखा, सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, कि जिसने उस ईश्वर को जानिया है उसनों ही सतगुरु किया जा सकता है। ऐसी अवस्था वाले नो जिसने जानिया है और जनाउण दी हिम्मत भी रखता है, ऐसे इंसान ਨੂੰ चाहे कैसा भी होवे साडी दृष्टि के अंदर, चाहे लोग उसको बुरा भला कितना ही कह लेन, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन जरूरत है सानू इस परख, ऐसी परख करन दी कि जिसनू धार्मिक ग्रंथ कहंदे ने, क्योंकि गुरबाणी के अंदर आउंदा है कि ऐसा सतगुरु ही सानू उस ईश्वर दे नाल मिला सकदा है। एको शब्द विचारिए अवर त्यागे आस, नानक देख दिखाइए हो सद बलहारे जास। कहंदे ऐसे सतगुरु दे चरणा तो बार बार बलहारे जाना चाहिदा है, जिस दी कृपा दे नाल उसने सानू एक दे नाल जोड़ दिता, जिस दे नाल आप पहला जुड़िया होया सी, आप उसनू देखदा सी, और जिस वेले कोई भी उसदी शरण विच गया तो उसनू दोबारा उसे रस्ते दे उपर चला दिता जिस रस्ते नू अज तक असीं सारे ही भुल्ले होए हां। महापुरुष कहते ने कि मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता, संतन संग जाता पुरख विधाता घट घट नदर निहालिया। कहते जो परमात्मा का रस्ता है ना उसनू केवल संतां दे द्वारा ही जानिया जा सकता है, और जिस वेले ऐसे संत मिलते ने उस वेले जिस वेले रस्ता जनाउंदे ने सानू उस ईश्वर का दर्शन करवाउंदे ने, फिर घट घट नदर निहालिए, पहला अपने अंदर उसी का अनुभव करके फिर हर एक कण कण दे विच इस संसार के हर एक चीज दे विच सानू ईश्वर नजर आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक विचार है कि आप कहते हो कि गुरु को ले जाओ, गुरु की कृपा दे नाल परमात्मा को देखा जाता है, लेकिन असी जो संसार देख रहे हैं ये भी तो परमात्मा का ही रूप है, ये भी तो परमात्मा ही है। लेकिन ऐसे लोगों की हालत उन्हां वर्गी है जिन्हां को दृष्टि तो है ही नहीं और गल कर रहे नहीं देखण दी। रामायण के अंदर इससे संबंधी एक बहुत अच्छी कथा आती है, जिस वेले प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास को कट्टन के लिए गए और उन्होंने और भरत जिस वेले आंदा है अपने नानकियां तो उसको पता लगता है कि प्रभु श्री राम वनवास के गए चले और मैनू राजपाट मिलन लग्या है, तो बहुत दुखी होता है और प्रतिज्ञा करता है कि मैं प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लेके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरे पासे जिस वे प्रभु श्री राम को पता लग्या कि भरत मैनू लैन दे लिए आ रहा है, तब प्रभु श्री राम कहते ने कि जो भरत कहेगा मैं भी ओही करना है। और भरत जिसले प्रभु श्री राम को पहुंचा तो उत्थे जाके जिसले प्रभु श्री राम को कहा, तब प्रभु श्री राम ने भरत को अपनी दोनों खड़ावां दे दित्तियां और भरत भी आराम दे नाल उन्हां खड़ावां नूं अपने सिर उपर रख के अयोध्या दे विच वापस ले गए। तां किसी ने प्रभु श्री राम नूं सवाल किया, कहंदे महाराज पहली गल तां भरत ने प्रतिज्ञा की सी कि आप लैके जाएगा, भरत अपनी प्रतिज्ञा से पूरा नहीं उतरिया और आपने भी कहा कि जो भरत कहेगा मैं भी वही करांगा, लेकिन आपने भी उसकी गल नहीं मनी और उसको खड़ावा दे के वापस भेज दिता। आप भी जो कहते हो कर देता है ही नहीं। तो उस वेले प्रभु श्री राम कहते ने कि अज भरत उन्हां खड़ावा के रूप में राम और सीता को भी लैके गया है। तो उस वेले व्यक्ति कहता है कि महाराज अगर उन्होंने खड़ावा के रूप में राम और सीता अयोध्या गए ने तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेंदे कि उन्होंने खड़ावा को जंगल में छड़ जाओ 14 साल के लिए और आप अयोध्या चले जाओ। तो उसलिए प्रभु श्री राम कहते हैं कि ये आपकी दृष्टि है। प्रभु जो भरत है वो एक भक्त है और वो भक्त होने के नाते उन्होंने खड़ावा के विच भी मेरा दर्शन कर रहा है, लेकिन ये दुनिया वाले अगर मेरे इस शरीर के अंदर ही मैनू देख लैन तो इस तो वड्डी गल होर कोई नहीं होएगी। खड़ावा के अंदर वो किस तरह देख सकते हैं जो मैनू ही नहीं पहचान पाए शारीरिक तौर पर। इसे करके वो लोग जो कहते हैं असि सारा संसार के अंदर देखते हैं ये सारा परमात्मा ही तो है, लेकिन उन्हां लोकां नूं ये नहीं पता कि परमात्मा नूं देखना इन्ना आसान नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा शारीरिक रूप दे विच संसार दे उपर आया है उसनूं पहचानिया नहीं, उसके विरुद्ध असीं ना जाने किहड़े-किहड़े गल्लां करते हैं, कितना विरोध करते हैं और दूसरे पासे कह दिंदे हैं कि असीं कण-कण दे अंदर उस ईश्वर दा दर्शन करते हैं। ते दोनों विचार ही आपस दे विच कटदे होए नजर आउंदे ने। इसलिए जरूरत है कि जो शक्ति शरीर रूप लैके संसार ते आई है पहला उसको जानन दी, उस सतगुरु को पहचानन दी, उसकी शरण विच जाण दी, और जिस वेले असीं उसदी शरण विच जावांगे तो वो सानू साडे घर के अंदर ही उसका दर्शन करवाएगा। अगम अगोचर देख दिखावे नानक ताका दासो, वो जिसने दर्शन करवाएगा पहला अंदर देखांगे बाहर भीतर एक को जानो, फिर ये अवस्था आएगी। पहला अंदर देखा फिर ऐसी दृष्टि हो गई, उसको देखते देखते बाहरी तौर पर भी हर एक चीज उसका रूप दिखना शुरू हो गया।
लेकिन ये उन्नी देर संभव नहीं जिन्नी देर अपने अंदर पहला उसका दर्शन नहीं किया। इसलिए जरूरत है पहला ईश्वर का साक्षात्कार करन दी, ऐसे सतगुरु दे कोले जाण दी जिसदी गल धार्मिक ग्रंथ कहते ने। लेकिन एक बारी इसे विचार नूं लैके व्यक्ति दे नाल विचार विमर्श होए और वो व्यक्ति कहता है कि आप दी सारी गल्लां दे नाल असीं सहमत हां, लेकिन आप दी एक गल समझ नहीं आउंदी। आप बड़े आराम दे नाल कह दिंदे हो कि गुरु कोले जावांगे, गुरु सानू परमात्मा दा दर्शन करवाएगा, लेकिन अज तक जो भी परमात्मा दा दर्शन करदा है कहंदे फिर दुनिया दे विच नहीं रहिंदा, वो दुनिया तो ऊपर उठ जाता है। तो असीं कहे तां गल बिल्कुल सही है, ऊपर तो उठना ही है। परमात्मा एक ऐसी चीज है जो गंदगी तो ऊपर उठा दिंदा है, लेकिन उस व्यक्ति दे कहण दा मतलब कुछ होर सी। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की सोच के ऊपर अफसोस होता है, दुख होता है कि साडी सोच कितनी छोटी है। साडे इतिहास के अंदर जिसे असीं देखते हैं तो कितने भगत होए जिन्हां नूं असीं याद करते हैं, और याद करने के पीछे कारण यही सी कि उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को जाना। और उद्देश्य की सी? भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। मिलन की वारी दस्या कि उद्देश्य ए है, और महापुरुषों को याद करने का मतलब यही सी कि उन्होंने उद्देश्य को पूरा करके उस ईश्वर को मिले, और मिलन तो बाद अज सारा संसार उन्होंने याद कर रहा है। और अज उन्होंने महापुरुषों के जीवन को जो असीं देखते हैं तो उन्होंने जिस वे अपने गुरु तो महापुरुषों तो ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया, तो उस तो बाद दुनिया के अंदर सच का प्रचार किया। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। गुरु नानक देव जी मारे गुरबाणी के अंदर लिखते ने कि जैसे जल में कमल निरालम मुर गई निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम विखाने। कि दुनिया के अंदर फिर ऊपर उठना यह हो जाता है कि जिस तरह पानी के अंदर कमल का फुल है, लेकिन चिक्कड़ च रहिंदा होया चिक्कड़ उसनूं छू नहीं सकता, और पानी के अंदर ही मुर्गाबी रहती है। और जिस वेले पानी तो ऊपर उठती है तो उसके परां दे ऊपर कुदरती तौर पर ऐसी चिकनाहट है कि पानी कदे ठहर नहीं सकता। इसी तरह ही जिस वेले असीं उस ईश्वर का दर्शन करते हैं, गुरु की कृपा दे नाल उसके अंदर ध्यान लगाते हैं, तो फिर सानू दुनिया के अंदर रहने का ढंग आ जाता है कि दुनिया के अंदर रहना किस तरह है। साडी सोच फिर ऐसी हो जाती है कि सानू हमेशा याद रहता है कि एक ना एक दिन असीं संसार तो चले जाना है, और जिस वेले जाना है तो साडे नाल होर कुछ नहीं बल्कि वो परमात्मा का नाम ही जाएगा। और जिस वेले ऐसी सोच पैदा होती है तो फिर अपने आप दिल विचों निकलता है कि महाराज मालक ऐसे लोगों का, ऐसे महापुरुषों का संग करवा जिन्हां दे संग दे नाल सानू अपने जीवन की सच्चाई बारे पता लग सके। कि सोई सज्जन मेल जिन्हां मेलिया तेरा नाम चित आवे। कि ऐसे ही सज्जना का संग होवे जिन्हां दे मिलन दे नाल तेरे नाम की याद आवे, तेरा दर्शन हो सके और साडे जीवन का कल्याण हो सके। और सानू भी जरूरत है ऐसे ही सज्जना महापुरुषों का संग करन दे जरूरत है। जीवन के अंदर बहुत ही जिस तरह एक प्यासे नूं पानी दी, भुखे नूं रोटी दी, और किसी व्यक्ति नूं पहनन दे लई उपर लैण दे लई कपड़े की जरूरत हुंदी है, ये तो फिर भी जरूरत है। लेकिन साडा तो आधार ही ईश्वर है, और जिसले आधार को खो देवांगे तो बाकी कुछ भी नहीं रह जाता। जे नींव ही खत्म हो गई तो ऊपर मकान नूं तो उसारा ही नहीं जा सकता। इसलिए आधार ईश्वर है। उस ईश्वर नूं नाल लेके जिसले असीं चलांगे, जाणांगे, समझांगे तो अपने जीवन के अंदर असीं उस सदैवी आनंद सुख शांति नूं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों के दसे हुए मार्ग नूं अपना के अपने जीवन के उद्देश्य नूं पूरा करिए। यही साडे महापुरुषों का संदेश है जो हमेशा रहा है, और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी उस संदेश नूं लेके दोबारा फिर घर दे विच, पिंड शहर दे विच उस संदेश नूं दे रही है। और आज आपने उस विचारां नूं श्रवण कीता, उस संदेश नूं श्रवण कीता, और असीं आस करते हैं कि आप इन्हां विचारां नूं अपने जीवन के अंदर धारण करके अपने जीवन के उद्देश्य नूं पूरा करोगे। तो इन्ना ही कहंदी होई मैं अपने विचारों को इत्थे रोकदी हां। तो बोलिए सतगुरु जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।